SOTEX Network is actually a tech aggregator and a knowledge platform. It is a B2B, it forms B2B networks for you, which can really get you global connections. And how do we do that? We do that by offering smart tech tools for sales as well as sourcing, and we make sure that through unified workflows you can connect with buyers and suppliers globally. The ultimate aim is that we help you grow your business. That is what we want, and our ultimate aim is growing your business. How do we do that? We do it with three verticals which SOTEX has. Number one, SOTEX Network, which is primarily a discovery and lead generation platform where real-time sourcing of raw materials, multiple interactions, surplus stock management and liquidation, idle capacity search and updating is absolutely possible. And we have more than 12,000 members on this platform. SOTEX Connect, it's an online learning management system for the industry, whereby we do networking meets, tech innovation sessions, knowledge series, fireside chats, and business growth sessions. And then we have the latest baby under SOTEX banner, SOTEX Design Lab, which is an online fabric to design solutions, where we have tied up with the global giant Tukatek. We have become their exclusive partners in Asia, and we have presented some amazing solutions where we have the fabrics to trims library, listing in the e-catalogs, virtual design and 3D solutions, which we are presenting along with Tukatek, and of course, design records. What we have achieved because of design labs is that you can actually reduce your sampling time from sampling process from 3 weeks to 3 hours. Yes, it is indeed possible. Looking at SOTEX Connect, this is how all the members get the benefit from. With a single dashboard, they can look at their stock side as well as their inquiry side. They can see what kind of queries which are coming in, and they get benefited every week, every month. They have hundreds of queries, hundreds of leads with which they can really do some good business. And this is the list of all the people and all the associations who support us, right? You can see some big names from GAIR to Tirupur Industrial Exporters Association, to Noida Apparel Exporters, to Indian Importer Chamber of Commerce, and all the clients which you can see we have. Overall, with all these solutions, SOTEX has generated wonderful business opportunities for people. $70 million worth of business already has been generated on our platform. 13,000 plus fashion and textile companies connected through SOTEX across 20 plus countries. 48 plus categories in textile, 900 plus textile subcategories. And on our SOTEX Connect webinars and trainings have been attended by over 10,000 users in the past 15 months. Along with that, so we have got support from 8 textile associations to connect with the community at large. And while we do all of this, our whole idea is that we can keep going into the digital transformation. Yes, the times are tough, but we are saying that let's see how we can save natural resources, how we can go into a digital revolution when the travel is not possible, right? How we can engage more digitally and also in turn save the environment, right? This is what we do at SOTEX Network. And to SOTEX Connect, as I said, that it is a platform which is there to learn, engage, and collaborate. And we are thankful to our sponsors, VN International and DTEX, for helping us plan that. And of course, our associations who support us, Garment Export Association of Rajasthan, Indian Importers Chambers of Commerce and Industry, Tirupur Exporters Association, and Noida Apparel Export Cluster. And of course, the latest one, as I just mentioned, thank you so much to Tukatek for helping us plan, helping us bring so much of difference to the way the processes will be done. This is the change which, along with you, we have managed to bring to the industry. SOTEX, as I said, Code Connect primarily helps the textile community get more opportunities to connect, train, interact, collaborate, and co-create, right? We want to add more value for our partners, 13,000 of them. We want to keep them updated with the latest industry trends. We want to get them inspired by the industry leaders like we are going to do it today. We are there to help you upskill your business,
and we want you to learn from the best. How we do that? We bring in networking events, knowledge series, tech innovation sessions, fireside chats, business and personal upskilling sessions, along with all what we want is that we want to learn, engage, and collaborate. And what kind of audience you get here? In all these events, in all these networking and the buyer seller meets, brands and buying agents come here, retail chains come here, garment and home furnishing manufacturers come here, fabric trims and machinery manufacturers come here, and allied services working for textile industry. Overall, large companies to medium companies to small companies, from business owners to sourcing heads to sales heads to decision makers and merchants, as well as designers, they all come in here and they all find value here. At Sotex Connect, as I mentioned earlier, we have already have had 10,000 plus attendees, over 1,000 participants we get every month, 6 plus events we conduct every month, and 10 plus nations are now a part of it. These are some of our past events where people have joined us from all across the world, from US to Canada, to Bangladesh, to Vietnam, to Sri Lanka, green buildings and textile industry, design for environment, how to automate your business through Google Forms and Sheets, what are the 7 unbelievably easy ways to grow your exports. All of these kind of events which you've done in the past. By this, we want that we all come together, we all learn together, and we create more opportunities together. Ultimate aim is that we learn, engage, and collaborate. And what do you really have to do for it? We have to make sure, and you have to make sure, that you just have to look for your Sotex Connect monthly events calendar. And if you're already a member, you will get a newsletter and get all the details about the events. You need to block your Thursday 5 p.m. to 6:30 p.m. That's it. And what kind of things we do in these events? If you see our July and August events calendar, you will see 22nd July, we are coming up with, of course, today is the session which we are coming up with Mr. Keval Jain. 24th of July, we are coming up with Automate Your Business by Google Sheets and Forms. 29th, we have Maximizing Efficiency to Sotex Design Labs. And 5th August, we have our monthly buyer seller meet. Just to show you, this is the latest one which is coming up. This Saturday evening, we are coming up with an event along with Tirupur Exporters Association, where we talk about automate your business with Google Forms and Sheets. Then next Thursday, we have our event on how to reduce your design development time from 3 weeks to 3 hours. We will get to know all about our event here on this Thursday, how we go forward with it. And of course, as I said, on 5th of August, 5 p.m., we have our monthly networking meet, which is going to be again joined by fashion textile buyers, manufacturers, suppliers from all across the world. And I've already thanked our sponsors. I would like to do that one more time. Thank you, DTEX, for such a wonderful support which you provide. You are one of the best companies in mass manufacture, one of the top 10 on Amazon and Flipkart. Thank you for supporting our initiative, as well as I would like to thank VN International again for thanking us. They are one of the best gifting companies around, and they really, really help create some wonderful opportunities. In the end, I would like to talk about the top 8 value propositions which Sotex users get. 30% more business opportunities on the platform by being there. 200 new leads every month of new buyers and suppliers. That's amazing. Portfolio management tools to share and manage design, stocks, and capacities. Single dashboard for managing vendors and teams. Dynamic website to showcase your company, USP, and infrastructure. Digital marketing of product and services to focus buyers. And live upskilling tools, as I said, through Sotex Connect, and live networking events. All of this is something what you get. And as you can see at this point of time, there is a link which has been put in the chat box, which is the list of all our events, and you can log in there and look at all our events and register for them. All of these services you see are available. What about 15 lakh of rupees are available at peanuts, literally, if you become a member of ours. Now today, after all of this, it is my privilege to announce the session for today. And this session, as I said, we're going to be talking about the Keval Kiran clothing story, right? We all need to see what lies behind, what struggles lies behind the entire story. So let me first introduce
our presenters for today, our dignitary, our VIP for today. And it is my pleasure to introduce Mr. Keval Jain, who's the chairman and managing director of Keval Kiran Clothing Company. Keval Kiran Clothing Company is limited is one of India's largest branded apparel manufacturers engaged in designing, manufacturing, and marketing of branded jeans and wide range of Western wear, with in-house fashion brands like Killer, Integrity, Lawman Page 3, Easy's, Desi Bell, K Lounge, and Addictions. Company have created a niche segment for apparel and accessory lovers across India. Isn't that amazing? Born in 1962, Mr. Keval Chand P. Jain decided to join the business at early age after completing school. He learned the business on the job and spearheaded the group's foray in branded apparel business. A keen student of finance and a hands-on manager, he heads the finance function of the company and is responsible for the overall management of the affairs of the company. In the year 2006-7, Mr. Jain has been awarded the prestigious Apex Brand Entrepreneur of the Year Award 2005-6 by CMAI and the prestigious Achievers Award 2006 by the Junior Chamber International Marine Lines, a worldwide federation of young leaders and entrepreneurs. Mr. Keval Jain, welcome to our event, and it's an absolute pleasure to be in the same room with you. And I am extremely delighted that we will be getting to know more about you. Keval ji, namaskar, and आपके Keval ji, namaskar. Namaskar ji. Ji. Chali, Sonal, now it is my pleasure to introduce Sonal, who will be moderating the event today. Sonal is the founder and CEO of Sotex Network, all what we spoke today about, empowering fashion and textile companies on digital transformation. That's what he does, right? With over 20 years of experience in fashion and textile industry, worked in diversified areas in sales, marketing, manufacturing, exports, fashion retail, e-commerce, and business technologies. He's an MBA from CQ University, Australia, and currently learning new innovation skills from MIT US. He started his journey in textiles from wholesale and gradually moved into manufacturing, exports, retails, and online fashion business. His company, OzelFashion.com, was among the early online fashion startups in 2018, which is scaled to compete with fashion e-commerce players like Fashion and You, 99 Label, before exiting the race to Amazon, Myntra, Jabong, LimeRoad in 2016. Recurring business challenges for small and medium businesses prompted him to work on modern day solutions, conceptualize and integrate business automation tools for textile ecosystem, and hence Sotex Network was born. Sonal, it has been an absolute pleasure. I've known you for several years now, and it has been an absolute pleasure working with you, connected with you, and developing Sotex Connect, and Sotex Design Lab together. Thank you so much for doing this to the industry. And I will now unshare my presentation, and I would please request you, Sonal, to take over the session. Thank you so much, Gagan, for a wonderful introduction for me as well as for Keval ji. And it's been an absolute honor to have Keval ji in the room with us today. And I, on behalf of Sotex community as well as from JBN community, as a national co-convener of the JBN textile and the garment industry group, I welcome Keval ji on this forum today. And it's just been an absolute, delight to have you as a mentor also of our group in the G2 fraternity. And I just felt that I feel overjoyed from the fact that आज की डेट में आज आपके साथ बैठ के I've been able to get the opportunity to have learnings from you and understand how it's been your journey. So sir, before we start off this session, I want to start off with my set of questions. Building Keval Kiran Clothing, it's been one of the fashion icons in the industry, and it's been with 6 brands, 6 manufacturing locations, and retail stores spread across India, and you're also now doing it to Middle East. There is a lot to learn
So I wanted to know, sir, how did you start with this journey? How was your initial days of building up the Killer Jeans together? थैंक्स टू एवरीवन। सुनील जी, देखिए कि हमारी जर्नी जो है बहुत टफ रही है और बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ रही है हमारी। नॉर्मली क्या 1989 में हमने अपना पहला फर्स्ट ब्रांड किलर लॉन्च किया था। तो एक्चुअली आप देखेंगे तो माय स्कूलिंग इज जस्ट 12th स्टैंडर्ड, नॉट मच करके। और मार्केट के फैशन के बारे में अगर आप बोलोगे करके कि इंटरनेशनल फैशन क्या होती है, उसका हमको एबीसीडी का भी नॉलेज नहीं था करके। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर अगर हम देखें तो फैशन की दुनिया में हम 50 साल पीछे थे नॉर्मली। तो ऐसे ही दिमाग के अंदर एक चीज आई करके कि हम दुनिया में पीछे है, तो क्यों नहीं हम ऐसे ही एक दिमाग के अंदर आइडिया बनाए कि हम एक इंटरनेशनल कंपनी के जैसा नॉर्मली हम इंडिया के अंदर एक फैशन कंपनी बनाए जो वर्ल्ड बाद में अपना इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है कंपनी, फैशन की कंपनी फॉरेन के अंदर जाके अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करे करके। ये इनिशियल आइडिया थी। ये इनिशियल आइडिया के पीछे नॉर्मली क्या था करके कि नॉर्मली इंडिया के अंदर जब काम करते हैं तो सब जन का एक ही चीज होता है कि जब छोटे होते हैं, 1989 में मेरा टर्नओवर था मोस्टली नॉट लेस देन 1 करोड़ करके। बट द कॉन्सेप्ट इज दैट कि हमने क्या किया करके नॉर्मली कि इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग का हमने सबसे पहले प्रिस्क्राइब किया करके कि अकाउंटिंग सबसे पहला क्लीन होना चाहिए। और आगे अगर बढ़ना है आपको तो आपको बैंक के थ्रू आपको लोन लेना है या आगे बढ़ना है, कोई हेल्प चाहिए, पूरी डिटेल आपको चाहिए। नॉर्मली हमारे ट्रेड में क्या होता था कि पहले जो अपना ऑर्डर लेते थे, 2 सीजन के अंदर माल बनाते थे और माल का जिस तरह से सेल होता था बस उतना ही सेल होता था, बाकी सब कुछ छुट्टियां होती थी नॉर्मली कि सीजन हो गई। बस बाद में जो रेडी माल मिलता था, ऑर्डर जितना होता था, तो साल में 4-5 महीना धंधा होता था, 12 महीना बिजनेस होता ही नहीं था नॉर्मली। हमने एक रिस्क ले करके कि हमने स्टॉक बनाना चालू किया। पहले गारमेंट में अगर आप देखेंगे 1989 या उसके पहले की मैं आपको बात बताऊं, 86-87 की बात बताऊं, जब आपके घर में अगर कोई स्टॉक माल रहता था तो नॉर्मली लोगों का ये कॉन्सेप्ट रहता था कि आपके पास माल बचा हुआ माल है, वो डिस्काउंट के अंदर बिकना चाहिए करके। अच्छा, 1989 के बाद जो जर्नी डेनियम की जो चालू हुई नॉर्मली, क्योंकि 86-87 में अरविंद का पहला डेनियम का प्लांट लगा करके, तो जो इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट जो था, लोग पहले जीन्स लेके आते थे, दुबई से लेके आते थे, हांगकांग से लेके आते थे, आपने नाम सुना होगा, हारा है, रैंगलर है, ऐसे सारे ब्रांड लोग वहां से लेके आते हैं नॉर्मली पहनने के लिए। यहाँ आप देखेंगे बॉम्बे के अंदर मनीष मार्केट है या ऐसे जो मार्केट जो थे, ताड़देव है, एयर कंडीशन मार्केट में, वहां पर आपको जीन्स मिलते थे और लोग वहां पर जाके इंपोर्टेड जीन्स खरीदते थे नॉर्मली। ये कॉन्सेप्ट था। सबसे पहला इनोवेशन हमने किया करके नॉर्मली कि क्वालिटी क्या होती है, सबसे मेन चीज कि क्वालिटी क्या होती है प्रोडक्ट की, वॉशिंग क्या होता है, इसकी तरफ हमने सबसे पहला ध्यान दिया करके। सो नॉर्मली क्या उस टाइम पे मैं आपको बताऊं कि हमने एक, हमारा तो बिजनेस बहुत छोटा था करके, बस हमने एक इंडिया में एक ब्रांड था बफेलो करके, उसकी हिस्ट्री में आपको बताऊं। हमने बफेलो को अपनी रिटेल दुकान के लिए, छोटी सी एक रिटेल दुकान थी, हमने माल लिखाया था। हम तो खुद मैन्युफैक्चरर थे ही नॉर्मली, चलो एक माल भी लिखा हुआ हम करके। उन्होंने हम वो माल देने से इनकार कर दिया करके। बस उस दिन से वो धुनकी दिमाग में चढ़ गई कि हमें इंडिया के अंदर कुछ करके बनाना है, किसी का दबदबे के अनुसार हमको रहना नहीं है। पहले हम बड़े लोगों के लिए काम भी करते थे करके नॉर्मली, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ चीज के लिए। फिर हमने सोच लिया कि हमने जो है करके अपना खुद का ही काम बनाना है, और जो हम दूसरे के लिए काम करते हैं वैसे 100 लोग हमारे लिए भी काम करें। और दिमाग के कॉन्सेप्ट के अनुसार सबसे पहली चीज हमने बैलेंस शीट को क्लीन बनाना सीखा, नो टैक्स इवेजन प्रैक्टिस, सबसे मेन चीज। तो जो 1 करोड़ का जो टर्नओवर से लेके जो आज तक की जो जर्नी है, वो उसी बेस के ऊपर आज लास्ट 89 से लेके 2022 तक, यानी अब कितना साल हो गए, 33 ईयर्स हो गए नॉर्मली जो मेरी। और मैंने मेरी प्रैक्टिस चालू की थी गारमेंट इंडस्ट्रीज के अंदर फ्रॉम द एज ऑफ 12। तो आई लर्न कटिंग कि कटिंग क्या होता है, एवरेज कितना जाएगा। फिर वॉशिंग भी सीखा हमने, डेनियम की वॉशिंग के रात को 2-2, 3-3 बजे तक हम R&D में रहते थे नॉर्मली कि प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि जब तक खुद काम नहीं करो तो प्रोडक्ट के अंदर से पैसा तो बचता नहीं है, क्योंकि हर जगह कंपटीशन है। बड़े बड़े लोग क्या करते थे, जिनका नाम होता था तो उनका तो माल बिक जाता था, हम तो छोटे लोग थे करके, तो हमारे से माल कौन लेगा। जिधर जाओ माल बेचने के लिए सबसे पहली चीज अपनी टांग खींच लेते हैं करके, भैया हमको तो ये प्राइस में माल चाहिए, तो आप 2 पैसा बनाओगे कैसे। एक्चुअली गारमेंट का बिजनेस आज के दिन में कैटेगरी के अंदर जितने भी नए वेंचर्स आज के दिन में फैशन डिजाइनर है, उनको खाली फैशन डिजाइनिंग के अलावा उनको पूरा बिजनेस की जानकारी उनको सीखनी चाहिए। साथ साथ में उनको सीखना चाहिए कि खुद जितनी मेहनत करेंगे उतना स्किल के थ्रू उनकी अर्निंग होगी, और जब उनकी स्किल के थ्रू जितनी अर्निंग होगी नॉर्मली, तो उतने लोगों को वो हायर कर सकेंगे। नॉर्मली मैं एग्जांपल बताऊं, मेरे पास 4-6 लोग काम करें, क्योंकि देखिए इस चीज के अंदर 2 चीज है, एक है मार्केटिंग और एक आपका प्रोडक्ट कॉस्ट।
प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर अगर आप देखेंगे नॉर्मली कि आपको कपड़े वाले का पेमेंट करना ही करना है, टेलर का पेमेंट करना ही करना है, एक्सेसरीज का पेमेंट करना ही करना है, फैशन डिजाइनिंग प्रॉपर होना ही चाहिए, पैकिंग होना ही चाहिए, डिलीवरी होना ही चाहिए। ये खर्चे के साथ आपका जो जगह का जो रेंट है या आपकी खुद की जगह उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, गवर्नमेंट के टैक्सेस है, वो तो सब आपको पेमेंट कर रही है। वहां पर तो कोई डिस्काउंट नहीं होगा। डिस्काउंटिंग होगा का आपका एमआरपी कितना छोटा है, आपका होलसेल प्राइस कितना कम है। तो जितना आप खुद इफर्ट करके जितना प्रैक्टिस आप करोगे धंधे के अंदर, आपको 8 घंटे की जगह पे आपको 18 घंटा 19 घंटा काम करना पड़ता है स्टार्टिंग में कुछ सालों तक। तब जाके थोड़ा थोड़ा पैसा आपके पास बचता है और आप लोगों को हायर कर सकते हो। जब आपका 30,000 रुपया भी महीने का बचता था, एक एक्स्ट्रा पर्सन को आप हायर कर सकते हो। और जब लोगों की टीम बनती है आपके साथ पूरे बिजनेस के अंदर, तब जाके आपका बिजनेस धीरे धीरे करके प्लेटफॉर्म के रूप में बड़ा होते जाता है। क्योंकि ये तो एक सीड है छोटा सा। जब वट आप पत्ते आप झाड़ के अंदर जो कचरा होगा, जब आप कोई ट्री को रोप करोगे तो कचरे को साफ कर दे जाओगे, तो जितने आजू बाजू में जितने भी नए पौधे होंगे तो ग्रो होने के साथ आप एक अपना वट वृक्ष बन जाओगे। आज केवल किरण जो है करके आफ्टर 33 ईयर्स एक शेप के अंदर पहुंच चुका है। हमने टेक्नोलॉजी सीखी, हमने मशीनरी के बारे में सीखा। पहले लोगों को क्वालिटी नहीं आता था, सब सादी मशीनों के ऊपर काम करते थे। हमने सबसे पहले इन्वेंशन किया, लोगों को क्वालिटी सिखाई कि क्वालिटी क्या होती है। फिर डेनियम इंडिया के अंदर हमारा फर्स्ट मूवर एडवांटेज ये हुआ करके कि हमने जो इंटरनेशनल वॉशिंग के जैसा जीन्स बनता था, तो जीन्स के थ्रू जो है सेम टू सेम चीज हमारी बनने लगी। सेकेंड चीज इनोवेशन की बात करो, एडवर्टाइजमेंट। आज जो जीन्स और टी शर्ट का जो कल्चर है, ये यूरोपियन फैशन है। हमने कोई भी इंडियन मॉडल के थ्रू शूटिंग नहीं की, हमने लोगों को यही चीज सिखाई कि भैया ये तो इंटरनेशनल ब्रांड है करके की। सबसे पहले इमेज दिमाग के अंदर जब हमने पहला कैंपेन जो हमने बनाया, नॉर्मली शूट हमने इंडिया में किया। मेरा एक फ्रेंड है करके जो सीएमए एसोसिएशन में काम करता है, मैंने उसको ही पकड़ा, उसने एडवर्टाइजमेंट ली, हमने वही कॉन्सेप्ट बनाया। हमने लद्दाख में पहली शूटिंग की करके, फिर जंजीर में तो हमारा कॉन्सेप्ट जो था वो इंटरनेशनल लुक था। लोगों को लगा कि किलर ब्रांड जो है करके इंडिया का नहीं है। तो बहुत साल के बाद लोगों को पता चला कि दिस ब्रांड इज ओन बाय अपना कोई इंडियन अपना ओनर करके। पहले यही था कि हम किसी के लिए टैप काम करें, वी आर नॉट द ओनर ऑफ दिस ब्रांड करके। हमने कोई टैप करके इस ब्रांड को हिंदुस्तान में लाया हुआ है। सेकेंड चीज, जर्नी चलते चलते जब आगे कुछ सालों के अंदर हम आगे बढ़ते गए तो क्या इनोवेशन के अंदर, जैसे ओवरडाइट जीन्स है, नॉर्मली ओवरडाइट जीन्स है। फिर जो मैं स्टॉक की आपको बात कर रहा था, तो लोगों को हमने क्या कि हमने स्टॉक बनाना चालू किया। मार्केट के अंदर डेनियम का अपना डिमांड आया। डिमांड आने के साथ हमने लोगों को बोला करके आप स्टॉक रखिए, नहीं बिकेगा तो हम आपको अपना कोई भी चीज को, आपका रिस्क हमारे ऊपर, आपके ऊपर नहीं है। हुआ ऐसा कि सैटरडे संडे जब नया कस्टमर को नया कॉन्सेप्ट जब मिला और नई फिनिशिंग मिली इंटरनेशनल ब्रांड के सामने, तो माल तो बिक गया। तो संडे के दिन फोन करके बोलते करके, सर माल वापस। अरे भैया, जो माल तुम रखने वाले नहीं थे, तुम्हारा माल तो बिक गया करके सैटरडे संडे के अंदर। तो स्टॉक बिल्ड होने लगा। हमने डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किए, हमने बॉम्बे में डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट, क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल कैपेसिटी कम थी पहली बात। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किए। तो उसमें दो काम होते थे, एक तो हमारा सर्विस भी हो जाता था प्रोडक्ट का, अपना लोगों को संभालने का काम भी हो जाता था, लॉजिस्टिक काम भी हो जाता था, और फाइनेंस के साथ हमको एडवांस पेमेंट मिल जाता था नॉर्मली। तो वी स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट डिस्ट्रीब्यूशन। जो कॉन्सेप्ट की जो देन है इंडिया के अंदर गारमेंट में, ये केवल किरण की देन है पूरे मार्केट को। हमने वहां से मार्जिन शेयर चालू किया। फिर हमको प्रॉब्लम ये आने लगे, जब हम नॉर्थ में गए, उधर आए, सर हम बिल नहीं लेंगे, टैक्स हमको नहीं भरना है। हमने इंक्लूसिव ऑफ रेट टैक्स के साथ कर लिया करके कि भैया आपको माल चाहिए तो आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट में उधर से भी चेंज होगा, बोला जब टैक्स के साथ प्रोडक्ट का प्राइस कर दे, क्योंकि डिमांड में थे हम, कोई दूसरे को प्लेयर थे नहीं मार्केट के अंदर। अच्छा, ओवरडाइंग के अंदर आपको मैं बताऊं कि ओवरडाइंग जीन्स जो हमने बनाया है नॉर्मली, वो केवल किरण की देन है मार्केट में। हमने वेट डाइंग जो है जीन्स के ऊपर अप्लाई होता है, वो हमने बनाया करके, किसी से हमने सीखा नहीं, कोई डॉक्टर ने हमको नहीं सिखाया, कोई टेक्निकल ने नहीं सीखा, ये हमने हमारे इंटरनली जो है। क्योंकि डेनियम क्या है, डिफेक्ट एंड इफेक्ट, जो चीज उल्टा करो तो उसमें वो इफेक्ट आता है, ये डेनियम की देन है। क्योंकि इधर तो क्या डिफेक्ट और इनोवेशन है ना, आप फटा हुआ जीन्स पहनते हो उसके वैल्यू क्या है, लेकिन हमारे लिए तो उसके वैल्यू ना, आपके लिए फैशन है। आप जब फटी हुई जीन्स पहनते हो, लोग आपको मॉडर्न बोलते हैं, बरोबर ना, आपकी वैल्यू ज्यादा करते हैं, आपका रिस्पेक्ट ज्यादा करते हैं। तो वो इनोवेशन के साथ टेक्नोलॉजी, वॉशिंग, हमने जब पहली दफे जो जीन्स को वॉश करते हैं तो लोगों को पता नहीं था कि जीन्स वॉश कैसे आता है। तो इंडोनेशिया के जो ज्वालामुखी के जो पत्थर होते हैं हमने इंपोर्ट किया था नॉर्मली, वो वॉशिंग के साथ हमने किया। हमने बहुत सारी मशीनें इनोवेशन करके हमने बनाई। पहले क्या होता था, छोटी छोटी मशीनें इंडिया में बनती थी, हमने बड़ी मशीनें बनाई जिससे हमारा लेबर कॉस्ट नीचे आया करके। तो ऐसे बहुत सारे इनोवेशन हमने किए, और इनोवेशन के कारण उसमें सालों लग गए। तो 89 से लेके 2005
2003 2004 तक जब हम पहुंचे करके नॉर्मली 14-15 साल में हम एक नॉर्मली टर्नओवर के ऊपर हमने पहुंच गए, हम 100 करोड़ के टर्नओवर तक हम 2005 टू 4-5 में पहुंच गए करके, जिसके कारण हमारे मार्जिन भी अच्छे थे। हमने 94 में एक्सपोर्ट भी चालू किया। एक्सपोर्ट में हमने भर भर के हमने माल बेचा करके दुबई और अपना मिडल ईस्ट कंपनी में, बाकू, मास्को, हमने काफी कुछ अपना माल बेचा और अपने प्राइस पे माल बेचा और अपने लेवल पे माल बेचा। हमने किसी के लिए, थर्ड पार्टी के लिए काम नहीं किया। तो एडवर्टाइजमेंट का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं, एडवर्टाइजमेंट का कॉन्सेप्ट आज भी हमारा इंटरनेशनल लुक है करके पूरा का पूरा। आपने हमारे एडवर्टाइजमेंट भी देखे होंगे करे, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट टीवी के ऊपर रिलीज हुआ है। कंप्लीटली इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्ट का क्वालिटी इज कंप्लीटली विद द इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट का जो कंपैरिजन, तो आज इंडिया के अंदर जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड है, जैसे आप कोई भी ब्रांड का नाम लीजिए, लिवाइज ले लीजिए, पेपे ले लीजिए करके, रैंगलर ले लीजिए, ली ले लीजिए, जितने भी सारे ब्रांड, उनके सामने अगर इंडियन ब्रांड कोई खड़ा है और तो किलर ब्रांड खड़ा है। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, हम लोग इंडियन ब्रांड के सामने, हम फाइनेंशियल में जब थोड़े आगे पहुंच जाते हैं तो हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं। हमने 2 चीज सीखी, चैरिटी करना है, आप खर्चा करो, पर धंधे का फोकस आप कम मत करो करके। सो 1989 से लेके आज भी हमारा पूरा फोकस धंधे के ऊपर है। हमको अगर कोई सोशल वर्क भी करना पड़ता है तो हम खर्चा कर देते हैं वहां पर, हम खुद एंगेज नहीं होते नॉर्मली, क्योंकि जब हम कमाते हैं तो हमको सोशल एक्टिविटी भी करनी पड़ती है। तो इनोवेशन की जर्नी में टेक्नोलॉजी, फैब्रिक एसोसिएशन, मेन चीज फाइनेंस, हमने कंपनी को हमेशा कैश रिच रखा, क्योंकि क्रेडिटर का पेमेंट अगर आप बिफोर टाइम करते हो, नॉर्मली जब माल आ जाता है और उसको घर पे बुला के अगर आप देते हो करके नॉर्मली, तो वह उस चीज के अंदर कि जब पेमेंट आप टाइम पे कर देते हो तो लोग आपके पास सामने से आके माल देते हैं। पहले अरविंद मिल थी करके, जिसके साथ हमारा एसोसिएशन था, हमको पहले माल नहीं देते क्योंकि हम बहुत छोटे प्लेयर थे। हमने पेमेंट देना चालू किया, वो 8-10 साल में हमने रेपुटेशन इस तरह से बिल्ड की कि सब जन हमको माल देने के लिए आने लगे। क्या होता है, जब बहुत छोटे होते हो तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। जब आप स्ट्रगल करते हो तो दुनिया क्या ऊपर, जब एक लेवल के ऊपर जब आप ऊपर पहुंच जाते हो तो दुनिया आपके साथ होती है, क्योंकि बहती गंगा में सब हाथ धोना चाहते हैं, आपके साथ सब एसोसिएट होना चाहते हैं। पहले दिन जब आप छोटे हो कोई एसोसिएट नहीं होना चाहता करके नॉर्मली। तो हमने पूरा ये टाइम फ्रेम देखा हुआ है, कॉस्ट इफेक्टिव देखा हुआ है। आज क्या हुआ करके कि आज भी हमारा काम करने का तरीका वो इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट, इंटरनेशनल लुक, आज इंटरनेशनल के प्लेयर हमारे यहाँ हमारी फैक्ट्री में भी काम करते हैं। काम करने का नजरिया पूरा कंप्लीटली इंटरनेशनल टच है। जब जाके आज देखिए 2008-9 में फाइनेंशियल ट्रेमर आया नंबर 1, फिर अभी कोविड का सबसे बड़ा ट्रेमर आया करके, बीच में ऑनलाइन ऑफलाइन के कारण डिस्काउंटिंग के अंदर भी आज जिस तरह से आज कंसाइनमेंट के ऊपर स्टॉक हो गया करके, आज आपके प्राइस को कंट्रोल करना है, आज आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट का प्राइस और जो सेल प्राइस है ऑनलाइन के अंदर नॉर्मली आप बना ही नहीं सकते हो प्रोडक्ट, पहली बात तो। क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग में आपको पेमेंट तो सब करना पड़ेगा, कपड़ा, सिलाई, टेलर, एक्सेसरीज का तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। लेकिन आप वहां पर जाके देखोगे तो उनका परचेस कॉस्ट क्या करके, उनका परचेस कॉस्ट उससे भी कम है जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। आप इनोवेशन करोगे कैसा, छोटे लोग बड़े कैसे बनेंगे? तो आज के दिन में हमारा जो ट्रेड जो है करके वो एक लेवल के ऊपर अगर आप देखोगे तो ऑर्गेनाइज होते हुए भी अनऑर्गेनाइज हो गया। आज भी 80% हमारा बिजनेस जो है वो अनऑर्गेनाइज है और 20% खाली ऑर्गेनाइज है। सेकेंड चीज क्या हुआ मैं आपको बताऊं, 2-3 इंडस्ट्रीज के अंदर जिस तरह से इनोवेशन हुआ, आज आप सैनिटरी वेयर देख लीजिए, आप शूज इंडस्ट्रीज के अंदर देख लीजिए करके कि वहां पूरा ट्रिमेंडस चेंजेज हो गया। लेकिन आज जींस, मैं आपको बताऊं, नाइके का शूज आप लेने के लिए जाओ तो आपको 8,000 से लेके 14,000 का एमआरपी का रेंज है। आज आप लोफर जो लेदर के शूज पहनते हो वो स्टार्ट होता है 4,500 रुपए से लेके 18,000 रुपए तक नॉर्मली शूज का प्राइस। लेकिन एक जीन्स जिसके अंदर आपका वॉशिंग यूनिट अगर आपका 1 लाख फुट का है तो आप अगर बनाओगे तो आज भी प्राइस माइंडसेट वही है कि 2,200, 2,400, 2,600 के ऊपर प्राइस नहीं होना चाहिए। जबकि जूता बनाना, अगर मैं जूते की फैक्ट्री डाल दूं तो मेरे लिए बहुत ईजी है, लेकिन जीन्स ही उतना डिफिकल्ट है क्योंकि आपको रिवर्स टेक्निक, इसकी कोई रेसिपी नहीं है जीन्स को कि आप उसमें क्या इनोवेशन कर रहे हो, किस तरह से फाड़ रहे हो, क्या फैशन है, फिर कुछ पता ही नहीं। पहली बार इंडिया में डिजाइनर है ही नहीं डेनियम के लिए, उसका वॉशिंग केमिकल क्या है, आप ऑयल और ग्रीस डालते हो, क्या क्या डालते हो आप करके आपको खुद को ही नहीं पता है कि इस इनोवेशन के अंदर आप किस तरह से आगे बढ़ते हो। और डेनियम की इंडस्ट्री इसी तरह से, मैं आपको बताऊं ना, जो हम बोलते हैं ना डिजास्टर, ये आपने अगर डेनियम की इंडस्ट्री सीख ली, इसमें से आपने डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी का कोर्स कर लिया, क्योंकि वो स्टॉक की इन्वेंट्री का वैल्यू आप सामने वाला नहीं दे सकता है। फटे हुई चीज को कौन घर में रखेगा? अगर आपका जैसे लॉकडाउन में 3 महीना माल घर में रह गया तो केमिकल के कारण फट फुटा के घर में आ जाएगा। आज आप इन्वेंट्री मेंटेन करते हो, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ की आपकी आउटस्टैंडिंग रहती है मार्केट में, वो तो सब जीरो हो जाएगा करके आपका।
ड्यू टू केमिकल। ये बिजनेस करने के अंदर इनोवेशन जगह आप सीख सकते, दिस इज अ वेरी स्ट्रगलिंग बिजनेस करके, कि जिसके अंदर देखिए शर्ट बनाना बहुत इजी है, लेडीज का टॉप्स बनाना बहुत इजी है, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी वॉश नहीं है। इसमें क्या, वॉश को जो आप घर पे पहला 100 दफे एक कपड़े को धोते थे, डेनियम के जाड़े कपड़े को, और 100 वॉश करने के बाद जो इफेक्ट आता तो हम सिंगल वॉश में हम देते, तो फटता था। और इसमें जैसा जैसा यान आपका फिल्टर होते जाता है, जैसा जैसा वो इतना आप उसको 3/4 पहन कर अपना काट के बना के पहनते हो, फिर शॉर्ट बना के पहनते हो, तो हमारा इंडस्ट्री चलेगी कैसे? पहली बात तो हम सस्ते में इतना दे देते हैं, पहली बात ट्राउजर, जीन्स, फिर 3/4 और फिर शॉर्ट्स, तो आप आपको एक ही चीज में 3-3 चीजें मिलती है करके नॉर्मली, और फिर भी आप उसको फेंकते नहीं हो। तो ये इंडस्ट्रीज के अंदर आने वाले टाइम के अंदर ऑनलाइन ऑफलाइन के झगड़े के अंदर जो ट्रेड डिस्काउंट जो है, अभी ये पूरा प्राइस के लिए स्ट्रगलिंग कर रहा है ये आज के करंट सीनियरों में। इस बिजनेस को अगर चाहिए, यू हैव टू बी कैश रिच, आपको इक्विटी डालना पड़ेगा स्टार्टिंग के अंदर। आपको अगर धंधे के अंदर लॉन्ग टर्म है, पैन इंडिया आपको चाहिए, आपके बैलेंस शीट हेल्दी होनी चाहिए। अभी छोटे मोटे प्लेयर का डेनिम इंडस्ट्रीज में काम भी नहीं है। अगर आपके पास नेटवर्क 400-500 करोड़ का नहीं है, आप डेनिम इंडस्ट्रीज में नहीं खड़े रह सकते, क्योंकि 20-25 करोड़ के अंदर आपके पूरे नेटवर्क की पूरी अपना ऑफ हो जाएगी उस चीज के अंदर। आप डेनिम का बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप आउटसोर्स करोगे तो आपको मार्जिन नहीं मिलेगा, आउटसोर्स करने के बाद भी आप डिस्ट्रीब्यूशन में दोगे तो भी मार्जिन नहीं मिलेगा आपको। और सराउंडिंग करने के लिए क्या है, मिक्सचर इतना बड़ा है ना करके, इस मिक्सचर का रेसिपी फाइंड आउट करना हम भी कभी कभी भूल जाते हैं करने का। इतने 46 इयर्स बिजनेस में रहने के बाद भी कभी रेसिपी को कैसे सेट करना, क्योंकि कंसाइनमेंट में माल कितना बिकेगा, कितना रिटर्न आएगा, उसका रेसिपी पता ही नहीं है, क्या प्राइस है, क्या रिफिलिंग करना है, कितना सीजन इन्वेंट्री आपको अपना नीचे बेचना है। तो ये सारे बहुत सारे इनोवेशन है, जैसे आपका HRD हो गया, आपका मार्केटिंग हो गया, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया करके, आपका मर्चेंडाइजिंग हो गया, आपका डिजाइन प्रोडक्ट हो गया। जब तक आप इतना डीप नॉलेज नहीं लोगे, तब तक इस इंडस्ट्रीज को में आप आगे नहीं बढ़ सकते। इतना डीप नॉलेज है सो यू कैन ग्रो। और उसके बाद भी यू हैव टू बी कैश रिच करके, जितना पैसा प्रॉफिट कमाओगे तो आपको 2 साल का पैसा आपके पॉकेट में है तभी। क्योंकि क्या होता है, डाउनफॉल जब आता है सीजन के अंदर, इतना डाउनफॉल आता है कि आपको वापस स्ट्रगल करके फैशन करके, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो जाता है। पहले नॉर्मली क्या होता था, जीन्स से कॉटन ट्राउजर्स आ गए, तो आपका ट्रेंड चेंज हो गया पूरा पूरा। आपकी फैक्ट्री में हजारों लोग काम कर रहे हैं, उनको आप अपने रीसप्लिंग कैसे करोगे, टेक्नोलॉजी को आप कैसे चेंज करोगे, तो उसके लिए 4-5 महीने के लिए आपके पास सैलरी का पैसा होना चाहिए। अभी जैसे मैं आपको पेंडेमिक का बात बताऊं करके, पेंडेमिक में 3-3 महीना 6-6 महीने 3-3 महीना आपका धंधा बंद हो गया। मैं फर्स्ट पेंडेमिक की बात करता हूँ अपना कोविड का। आपका फर्स्ट 5 महीना 6 महीना बिजनेस था ही नहीं, हर एक को स्ट्रगल करके। क्यों, क्या हुआ, समर का माल सबके पास बना हुआ था, समर का स्टॉक इन्वेंटरी क्लियर हुआ नहीं, सबको डिस्काउंटिंग में माल बेचना पड़ा। पहले दिन से क्या हुआ, 100 स्टॉक, आप जितने भी बड़े इंडिया के ऑर्गेनाइज रिटेल स्टोर है उन्होंने सेल चालू कर दिया। आपके पास भी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, आपको क्रेडिटर का पेमेंट करना है करके बहुत सारा प्रेशर रहता है। तो इसके अंदर यू हैव टू बी कैश रिच। जितना आपका धंधा है, जितना आपका क्रेडिटर है, जितना आपका बैंक लोन है, तो उसके एटलीस्ट 50% कैश आपके पास होनी चाहिए ताकि आप स्थिति को संभाल सको। कोविड में हमने ये देखा कि आपके पास इन्वेंट्री है, 90 डेज के ऊपर लॉकडाउन हो गया तो बैंक आपको बोलेगा करके कि आप लिमिट को एडजस्ट करो करके नॉर्मली। तो अगर आपके पास पैसा नहीं तो लिमिट को कैसे एडजस्ट करोगे? पार्टी का पेमेंट डिले हो गया, आपका पास पेमेंट रिसीवेबल्स नहीं हो रहे हैं करके, तो आप पैसा कहाँ से लाओगे? इधर लेबर की आपको सैलरी करनी है, आपका यूज टू कुछ भी नहीं है। सो यू हैव टू लर्न अ लॉट इन दिस इंडस्ट्री। जब तक आप इस इंडस्ट्रीज को लर्न नहीं करो, डोंट पुट योर लैग इनटू दिस इंडस्ट्रीज करके, ये मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ नॉर्मली। और आपका टिकट साइज, अगर आपका इक्विटी बहुत बड़ी है, if it is more than 100 crore, then you can put your leg into this industries, otherwise no। आप ट्राउजर में जा सकते हो, आप शर्ट्स इंडस्ट्रीज में जा सकते हो, आप लेडीज वेयर में 25 करोड़ की इक्विटी जा सकते हो, बट नॉट इनटू द कैजुअल वर्कर की। दिस इज माय एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 46 ईयर व्हिच आई एम शेयरिंग विद यू। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच केवल जी। आपने एक ही एरिया के अंदर आपने पूरा की पूरी आपने अपनी जर्नी सम अप कर दी। I had series of things जो मेरे को आपसे पूछनी थी, and still there are certain points जो still मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि while you created this journey over the span of last so many years, और आपने बहुत सारी struggles और innovations और financial modeling एक तरीके से आपने सारी चीजों को इकट्ठे रखा, and that is the reason why Cable Kiran Clothing is at the stage where it is, and it is one of the best public listed companies, and
with 6 brands, all profitable. मुझे आपसे एक चीज पूछनी है कि आपका जो इस जर्नी के अंदर आपका जो फर्स्ट इनिशियल सक्सेस फैक्टर था वो कब हुआ आपका? नहीं समझा नहीं मैं आपका क्वेश्चन, फिर से रिपीट कीजिए। जर्नी में जब आपका जो आपने स्टार्ट किया था हाँ 1980, जी, आपको पहला सक्सेस कब मिला? पहला सक्सेस देखिए, हमने जब 1989 में हमने शुरुआत किया करके, तो किलर ब्रांड हमने लॉन्च किया, तो हमारी सक्सेस की शुरुआत थी ना 89 ही करके। मैं तो उसके पहले से हूँ ना करके। मैं इंडस्ट्रीज में जब एज ऑफ 12 से मैं पहले काम कर रहा हूँ। मैं तो 76 77 से काम कर रहा हूँ इंडस्ट्रीज में। तो 9-10 साल तो मैंने बहुत कुछ सीख लिया करके। कटिंग सीख लिया, एवरेज सीख लिया, कम से कम प्राइस में प्रोडक्ट कैसा बैठाना है वो सीख लिया हमने। बहुत कुछ सीख लिया था हमने करके। उसके पहले हमने हमारे फादर को 43 की एज में तो रिटायर कर दिया था करके। 16-17 साल में मैंने बिजनेस पूरा टेक ओवर कर लिया था अपने हाथ के अंदर पूरा का पूरा। तब से लेके इनोवेशन, फिर मेरे साथ मेरे जो अपना यंगर ब्रदर जो है हेमंत जैन, फिर दिनेश जैन, विकास जैन जुड़ते गए और बिजनेस का एक्सपांशन होते गया। आज मेरा सन इस बिजनेस के अंदर है, मेरा नेफ्यूज बिजनेस के अंदर है करके, 2-2 3-3 नेफ्यूज है। तो आज कंपनी को चलाने के अंदर इजी हो गया करके। बट यू हैव टू लर्न अ लॉट थिंग इन दिस इंडस्ट्रीज करके। ये बिजनेस इजी नहीं है, नॉर्मली फैशन की इंडस्ट्री इजी नहीं है, टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज ऑटोमाइजेशन है, गारमेंट की इंडस्ट्रीज फिजिकल वर्क है। क्योंकि कोई भी कपड़ा डालोगे और आपका प्रोडक्ट बन के बाहर नहीं आएगा, आपका स्लीट नहीं बनेगा, आपका कॉलर नहीं बनेगा, आपका करके बैक फ्रंट जॉइंट नहीं होगा करके, आपका पट्टी, दिस इज फिजिकल वर्क। टेक्सटाइल इज व्हाट इज कंप्लीटली ऑटोमाइजेशन। डिजाइन दे दिया आपने, अलग अलग स्टेप्स और नंबर ऑफ मीटर्स के अंदर काम होता है। टेक्सटाइल इज वेरी इजी फॉर अस, लेकिन गारमेंट उससे 10 टाइम ज्यादा जो है अपना क्रिटिकल है। इट्स आर्ट। लोगों ने इस चीज को हमने इस चीज को समझा नहीं करके। गारमेंट डिजाइनिंग इज आर्ट। क्योंकि हम किसी की सुंदरता को जो है अपना प्रेडिक्ट करते हैं कि आप इस तरह से दिखोगे। अब दुनिया काय के लिए खर्च करती है? आज आप कोई भी फीमेल्स के साथ अट्रैक्शन क्यों रहते हो? क्योंकि सुंदर दिखनी चाहिए। आज आपकी वाइफ के लिए क्यों खर्चा करते हो? जेंट्स कमाता किसके लिए? कि अपने वाइफ और बच्चों के लिए, कि वो अच्छे दिखे। आज हर बंदा चाहेगा कि मेरी भी वाइफ जो है मॉडल के रूप में दिखे, मेरी सिस्टर, मेरी मदर भी अच्छी दिखे करके। उसके लिए तो आप कमा दो ना करके। सो फैशन इज फॉर व्हाट? फैशन इज फॉर इनोवेशन। ये तो रोज टू रोज नया क्रिएशन, ये तो एंड होता ही नहीं है कभी भी करके। एडवर्टाइजमेंट एंड फैशन ये तो नेवर एंडिंग स्टोरी है। जब तक आप अपना 90 साल के भी हो जाओगे तभी आपको लगेगा यार कुछ नया करना चाहिए करके, बरोबर ना? आप जहां से चालू करो एंडिंग होता ही नहीं है। पहली बात, इसके बाइबल कभी कंप्लीट होती नहीं है। रोज वापिस वो नया पेज आप चालू करो, शाम को पेज कचरे के डब्बे में चला जाता है, फिर नया पेज आ जाता है करके आपके पास। आप तो उधर के उधर ही हो। ये इंडस्ट्रीज में बोलोगे मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, कुछ काम में नहीं आता है। क्योंकि रोज फैशन बदलता है, रोज फिट बदलता है, रोज नया लुक बदलता है, रोज यंगस्टर का टेस्ट चेंज होता है करके। यू हैव टू बी इनोवेटिव। और जब आप ब्रांड बनाते हो करके, तो ब्रांड तो आपका जो पहले दिन आपने उसको जिस दिन बॉर्न किया ना, वो जब तक ब्रांड चलेगा 100 साल 200 साल तक, उसके लिए उसको हमेशा लाइव रखने के लिए आपके पास बैक सपोर्ट में फाइनेंशियल कैश आपको रिच होना ही पड़ेगा। क्योंकि जब सीजन चेंज हो गया तो उसको वापस मॉडर्न बनाना है। अगर फाइनेंशियल ट्रेमल के बाद अगर आपका ब्रांड नीचे आ गया, इट मींस यू आर डेड। उसके बाद उस ब्रांड की जो हालत जो है पूरी खराब हो जाती है। इसके लिए हमने केवल किरण में बिहार, हमको बोलते हैं कि कंजर्वेटिव कंपनी, हमने अपनी उस स्केल साइज जो हमारा आज कैपेसिटी है, हम उस साइज तक नहीं गए। क्यों? क्योंकि पीछे मालूम है कि कल उठ के फैशन चेंज हो गया, कुछ नया रिबिल्ड करना है, वापिस लोगों तक पहुंचना, उसके लिए फाइनेंस चाहिए। इन केवल किरण बैलेंस शीट विल सी अ ह्यूज अपना कैश अपना अवेलेबल इन द बैलेंस शीट करके, क्योंकि दिस अ पब्लिकली लिस्टेड कंपनी करके। तो हम हमेशा कैश रिच रहते हैं, हमको कोई टेंशन नहीं। क्योंकि इनोवेशन तब होगा जब आपके दिमाग में शांति है। आपके घर में देखिए, आप अच्छी लिविंगहुड कब आप जी सकते हो? आप लोन लेके अच्छी लिविंगहुड जी नहीं सकते हो। अगर लोन कुछ भी नहीं, आप जीरो डेट कल्चर में रहते हो, आपके घर में रोज आप वाइफ को जाके बोलोगे आज तू कुछ नया ले ले, बरोबर ना? कुछ कपड़ा खरीद ले, कुछ ज्वेलरी ले ले, बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग कर ले, क्योंकि आपके चेहरे के ऊपर एक हंसी होती है। एंड व्हाट अबाउट डिजाइन? डिजाइन इज हंसी। आप लुक को चेंज कर दो, किसी को स्माइल दे दो। दिस इंडस्ट्री इज फॉर स्माइल। कि कुछ देख के आपका मेंटल जो सिचुएशन, जो अगर आप डिप्रेशन में हो तो आप इंप्रेशन में आ जाओ। इट इज फ्रॉम डिप्रेशन टू इंप्रेशन। लोग आपको वाव बोले ना आपके अपना लुक को देख के, तू स्मार्ट लगता है, तो इस तरह से दिखता है, बरोबर ना? सो दिस इज फॉर कंप्लीट फेस ऑफ चेंजिंग करके। सो दिस इज नॉट इंडस्ट्री इज नॉट दैट थिंग, इट्स साइकोलॉजी है करके। आपको साइकोलॉजी डॉक्टर के पास जाओगे, आपको 10 फॉर्मूले बताएंगे, लेकिन आप अच्छे कपड़े पहन लो, आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी। जैसे आप परफ्यूम लगाते हो, आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है नॉर्मली। So innovation is never ending in this industry and you have to be live continue.
आपने चालू कर दिया, आपको लगा अरे यार अब तो मैं नहीं कर सकता हूँ करके, लेकिन उस चीज को जिंदा रखने के लिए जो है यू हैव टू बी कैश रिच इन दिस इंडस्ट्री, क्योंकि आपको पता है कि वापिस अगर मुझे रीबिल्ड करना पड़े अगले 2 साल का मेरे पास फंडिंग होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट, ब्रांड बनाना है, एडवर्टाइजमेंट भी आपको रहना ही पड़ेगा। आज दुनिया के इतने बड़े बड़े ब्रांड बने हैं, आज जिनका आज देखिए, आज जितने भी बड़े बड़े फैशन ब्रांड है उनकी एज आप देखेंगे, आज ज़ारा का आप एग्जांपल देख लीजिए, दे आर फ्रॉम 3 डिकेड्स टू 15 डिकेड्स। आज उनकी जर्नी क्यों हुई? क्योंकि वो अनबीटन क्यों रहे? क्योंकि जब छोटे से बड़े हुए और आपको एक डेवलपमेंट तक पहुंचने तक 30-35 ईयर्स का टाइम निकल जाता है। आज का एजुकेशन लेवल बहुत हाई है, सबको बहुत कुछ जल्दी समझ में आ जाता है, लेकिन फाइनेंस तो जब पैसा कमाओगे तो आपके हाथ में, आज आपको वेंचर कैपिटलिस्ट मिल जाते हैं, आप आईपीओ कर सकते हो। हाँ, पैसा वही काम जो 35 साल का काम आप 10 साल में, 5 साल 7 साल में कर सकते हो। यू हैव टू बी इनोवेटिव करके, लेकिन आगे आगे जर्नी अगर आपको लॉन्ग टर्म अगर रखना है, you have to be always cash rich and zero debt. Absolutely, sir, and I totally agree. And this is, I think, one of the biggest challenges जो हमारी इंडस्ट्री फेस करती है. But केवल जी, आपने एक ब्रांड नहीं बनाया, आपने 6 ब्रांड्स बनाए हैं, and all the brands are successful. इसका क्या सीक्रेट रहा और आपने इसको कैसे स्केल अप किया? देखिए, मैं आपको बताऊं, आप रास्ते पे जाते हो, बरोबर है, आपको टक्कर मारने के लिए दूसरा कोई बंदा आ जाता है, बरोबर ना? तो मैंने तीसरे बंदे को खड़ा कर दिया, वो तो उसको टक्कर में उसको उसका डर रहता है। अब जैसे जब किलर हमने लॉन्च किया था तो लोग क्या करते थे, दूसरे ब्रांड लॉन्च करके किलर के साथ उसकी इमेज को अपना मैच करते थे, क्योंकि वो हमारा सुप्रीमो था। तो बॉस को जैसे आप चेस खेलते हो नॉर्मली कि राजा रानी घोड़ा, बरोबर ना, कि सेनापति, ये चेस के जैसा पूरा बिजनेस है करके, बरोबर ना? अगर आपके पास ब्रांड है, इट मींस यू हैव चेस कंप्लीट विथ यू। आप अपैरल ब्रांड बनाओगे, एक सिंगल ब्रांड के ऊपर आप नहीं चल सकते, उसके साथ एसोसिएट ब्रांड भी होने चाहिए, प्राइस जर्नी के लिए होने चाहिए, क्योंकि जब आपका एक ब्रांड आप बनाते हो और एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, मैं आपको बताऊं रफ एंड टफ, इन्होंने प्राइस क्या हुआ मार्केट में, तो लॉन्च कर दिया 299, 399, 499, सबके फेल्योरिटी आ गई, क्योंकि इंडिया के अंदर 10% तो अपना इन्फ्लेशन का रेट है। पहली बात, आपका प्रोडक्ट यान का रेट बढ़ जाएगा। अब आप मेरे को बोलोगे अभी यान का रेट जिस तरह से 30, 35, 40% बढ़ा है, आप मेरे को ऑर्डर दोगे, मेरा प्राइस तो रहने वाला नहीं है। आज बिस्लरी के पानी को 10 रुपए से बढ़ाने के लिए आज उनको कितना पसीना छूट गया करके। दिस फैशन इंडस्ट्री इज नॉट फॉर द प्राइस टैग कि आप क्या प्राइस में माल बेच रहे हो, क्योंकि रोज इसका इनोवेशन, इन्फ्लेशन कंट्री के अंदर आपका चेंज होते रहता है। आपका कंट्री 10 साल में सरप्लस नहीं है कि इन्फ्लेशन का डिफ्लेशन होगा करके नॉर्मली, तो आपकी इकोनॉमी जो है करके अपना वेल्दीज रहेगी। इकोनॉमी वेल्दीज रहेगी तो जाके आपका प्राइस आप अपना अनाउंस करोगे, तो आपकी स्टेबिलिटी प्राइस का, आपका वेरिएबल कुछ नहीं होगा उस चीज के अंदर। तो आपको तो रोज का रोज चाहिए, यू कैन नॉट बी अनाउंस्ड करके। ये मैंने आपको मेरा 46 ईयर्स का पूरा बाइबल जो है ना, मैंने आपको पूरा शेयर कर दिया कि यू शुड नॉट अपना टैग योर प्राइस कि मैं 399 में बेचूंगा या 490, क्योंकि फेल्योरिटी हो जाएगा। अगले साल वही प्राइस आपका 599 हो जाएगा, आप मार्केट से आउट हो जाओगे करके। तो दिस इज द थिंग। हमने जो जितने सारे ब्रांड लॉन्च किए, इसके पीछे सब मैं कंक्लूजन में बता दूं आपको कि उसके पीछे की दूसरी जितने भी ब्रांड आ रहे थे, इकोनॉमिकल ब्रांड या मीडियम प्राइस ब्रांड टैग के हिसाब से, उनको साइड ट्रैक करने के लिए हमको भी दूसरे ब्रांड लॉन्च करने पड़े। बट आज भी हमारा मेन अगर पेरेंट ब्रांड अगर आपको किलर। सर, इतने सारे ब्रांड्स के साथ और इतने सारी प्राइस वेरिएशन के साथ खेलने के लिए हाउ डिड यू मेंटेन क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स? देखिए, मैं आपको बताऊं, बहुत सिंपल एग्जांपल है। आप पानी की बोतल खरीदते हो बिस्लरी की, आप छोटे हाइपर मार्केट से खरीदते हो, आप 20 रुपए देते हो। लेकिन आप जब उडुपी होटल में जाते हो तो उसी बोतल का 30 रुपया 35 रुपया देते हो। वो तो उसका कोई स्टार नहीं है। जब 2 स्टार होटल में जाते हो तो उसी प्राइस का जो है आप उसका आप 100 रुपया देते हो। आप 3 स्टार में जाते हो तो 150 रुपया देते हो, 5 स्टार में जाते हो तो आप 200 रुपया देते हो। प्रोडक्ट कहाँ चेंज हुआ? आपकी सर्विस क्वालिटी चेंज हुई, आपका एम्बियंस चेंज हुआ। आपका 5 स्टार का एम्बियंस और 3 स्टार। अभी इस इंडस्ट्रीज में क्या, जैसे मैं आपको रिटेलर के बताऊं, अपने इंडियन जितने भी रिटेलर है सब ऑर्गेनाइज है, बट अभी ग्रेडिंग नहीं हुआ, जिसे होटल इंडस्ट्रीज के अंदर ग्रेडिंग हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन के झगड़े चल रहे हैं अभी आजकल। तो अरे भाई, जिनको ऑनलाइन खरीदना वो ऑनलाइन खरीदे ना, लोगों को अगर ऑफलाइन में रहना है तो दे हैव टू क्रिएट देयर एम्बियंस। भाई मैं 3 स्टार हूँ शॉपिंग, मैं 5 स्टार हूँ शॉपिंग, तो उनका प्राइस पॉइंट यू हैव टू पे ना। जैसे आप पानी की बोतल को जब प्रोडक्ट चेंज नहीं होता है, आप सर्विस के लिए पे, एंड रिटेल बिकम्स इज अ सर्विस इंडस्ट्री। दे आर नॉट द क्रिएटर ऑफ ब्रांड्स, दे आर नॉट द क्रिएटर ऑफ ब्रांड्स करके। तो जब आप सर्विस कोई भी चीज प्रेडिक्ट करते हो, आप जो 3 स्टार 5 स्टार 2 स्टार
तो यू टू चार्ज अकॉर्डिंग टू दैट ना। आप उसी तरह आपका एम्बियंस बनाओगे ना। आप सिंगल स्टार होटल रहेगा, 2 स्टार तो आपका एम्बियंस छोटा रहेगा, रूम साइज छोटे रहेंगे, आपका हाउसकीपिंग क्वालिटी पुअर रहेगा। वही 5 स्टार हो गए, एवरीथिंग इज आप ग्लोबल टच रहोगे पूरे का पूरा उस चीज के लिए। तो आपका कॉस्ट उतना बढ़ गया आपका पर प्रोडक्ट के ऊपर। या मेरा 50 रुपया बॉटल के ऊपर खर्चा हो रहा है, वहां मेरा 200 रुपया बॉटल के ऊपर खर्चा हो रहा है, तो आई हैव टू चार्ज। वही आप कुछ नहीं, आप शिकंजी पी लो नींबू की। आप 5 स्टार में जाओ, वही आप दिल्ली में जाके जैन साहब के यहाँ जाके शिकंजी पियो तो आपको 100 रुपए के अंदर बहुत अच्छी शिकंजी मिल जाएगी। कोई 5 स्टार में जाओगे तो आपको 1000 रुपए देना पड़ेगा बॉस। तो दिस इज इनोवेशन आर्ट बॉस। प्रोडक्ट की क्वालिटी में देखिए, कपड़े में क्या फर्क पड़ेगा मैं आपको बताऊं। दुनिया में जो जीन्स 20,000 30,000 में बिकते हैं और जो हम लोग 2,500 3,000 या 4,000 में बेचते हैं, पूरे प्राइस रेंज कपड़े के अंदर 150 से 200 रुपए का फर्क है, बस उससे ज्यादा फर्क नहीं। दैट इज अ इनोवेशन एंड स्टाइल। जितने भी प्रीमियम ब्रांड है, जितने भी नॉर्मल प्रीमियम ब्रांड है करके, उनका क्या एक स्टाइलिंग है, बताने का तरीका है, एम्बियंस है, लोगों का एक दिखाने का तरीका अलग है। आप जाओ, आप 50,000 60,000 के गुच्ची के वगैरह शूज क्यों पहनते हो, बरोबर ना। आप प्राडा है, आप वॉच खरीदते हो करके नॉर्मली ब्रांडेड, आप राडो की वॉच खरीदते हो करके, आप क्यों पहनते हो, क्योंकि यू आर अफोर्डेबल, आपके रीच के ऊपर हो, आप दिखा दो लोगों को करके भाई आई एम अफोर्डेबल फॉर दिस करके। आपका लिविंग गुड स्टाइल उतना अफोर्डेबल हो चुका है करके। बेसिक बंदा रहेगा तो क्या पहनेगा, 1000 1500 2000 की घड़ी पहनेगा, और आप 2 लाख की घड़ी पहनते हो, दैट्स द डिफरेंस। प्रोडक्ट में क्या, घड़ी का टाइम वो भी वही बताता है और प्रीमियम में भी टाइम वही बताता है, खाली ब्रांड का नाम और कुछ फर्क नहीं है। नहीं, एब्सोल्युटली। सर एक बात बताइए, आपने नाउ दैट यू created such a big enterprise and is very successful enterprise with 6 brands in total and Killer being the flagship brand. अब आपका the last time we had a conversation, आपने बताया था कि आप exports भी कर रहे हो, तो now what has been the global vision of Cable Killer clothing as a company? देखिए, हिंदुस्तान में अभी हमारी कंपनी की साइज तो पहले बहुत छोटी है, क्योंकि हिंदुस्तान में 28 जितने भी स्टेट्स हैं, आपके 27 स्टेट्स जितने भी हैं, सब आज डेवलप हो चुके हैं। हर जगह पे आज फैशन का रीच हर जगह के ऊपर है, हर जगह पर शॉपिंग मार्केट है। आज इंडिया का मार्केट ही इतना बड़ा है कि हमको ग्लोबल पहुंचने के लिए और 5 साल लगेंगे, क्योंकि जब आप 30 स्टेट के अंदर आप पहुंच जाओगे तो ग्लोबल आप ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हो। ऑलरेडी हम माल 94 से एक्सपोर्ट में बेच रहे हैं, और हमारे ब्रांड के नाम से बेच रहे हैं, थर्ड पार्टी के नाम से नहीं बेच रहे। हम थर्ड पार्टी का लेबल लगा के नहीं देते, हम जॉब नहीं करते किसी के लिए। वी आर सेलिंग आवर ओन प्रोडक्ट। आप अगर दुबई जाओगे, आपको किलर जीन्स, आप कोई भी रिटेल बंदे के पास चले जाओ, बड़े बड़े स्प्लैश में चले जाओ, आप अपना कोई भी बड़े स्टोर में आप चल, लुलु में चले जाओ आप करके, आपको वहां पर आपको जीन्स मिलेगी करके। गुड गुड, एब्सोल्युटली गुड। सो सर, इसको पूरे चीज को आपने जो क्रिएट किया, इसके अंदर आई थिंक लोगों का बहुत रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है टू क्रिएट सच अ बिग सक्सेसफुल कंपनी। सो टेल मी अबाउट लिटिल बिट अबाउट योर टीम, जो आपकी टीम है, एंड आई नो यू हैव अ जॉइंट फैमिली बिजनेस आल्सो जहाँ पे आपके ब्रदर्स हैं, तो उन लोगों ने कैसे सपोर्ट किया आपको इस सारे? देखिए, मैं एक चीज बताऊं, जब इंसान को भूख रहती है ना, आप भूख वाले इंसान को आपके साथ ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसको करोड़पति बनना होता है। स्टार्टिंग में जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन की जो देन की ना, हमारे पास कोई भी ऐसे वेल्दी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं थे करके। किसी की इनकम 4 लाख 5 लाख, किसी की इनकम 10 लाख, उससे ज्यादा इनकम किसी भी नहीं थी करके। और मैंने अपने लाइफ के अंदर 100 करोड़पति बनाए, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ 15-15 साल 20-20 साल से काम कर रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं मेरे साथ में। कुछ लोग छूट गए लेकिन आज भी काम कर रहे हैं। तो हम इतना प्राउडली जरूर बोल सकते हैं कि केवल किरण बड़ा हुआ तो टीम लोग, क्योंकि आपकी देने की भावना होनी चाहिए वापस। अगर वो नहीं कमाएगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? आपके साथ अगला धंधा आपका 20% ग्रोथ कर रहा है, तो उसके पास भी उतना कैश फ्लो तो पहुंचना चाहिए ना, डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी आपका। अगर वो कमाएगा तो धंधे में पैसा लगाएगा ना, उसको भी दिखेगा ना करके। तो लोगों ने कमाया हमारे से, और आप खाली अकेले आप सीढ़ी आप पूरी आपकी रेस को जो आप पूरा नहीं कर सकते हो, आपके साथ में एसोसिएट चाहिए ही चाहिए। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन की देन मैंने आपको बताया, हमारे लिए फाइनेंशियल पार्टनर हो गई, तो उनको इंटरेस्ट भी मिलता था और प्रॉफिट भी मिलता था, सर्विस का भी कॉस्ट मिलता था। फिर आज ऑनलाइन और ऑफलाइन में आप डायरेक्ट दे रहे हो, तो आपकी टीम के लिए आपको खर्चा करना पड़ता है, आपको टीम बिल्ड करनी पड़ती है। पहले हमारी टीम के अंदर कम लोग थे, तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हमने ली। आज डायरेक्ट लोगों को माल चाहिए तो मार्केटिंग का हेड आज हमारे पास करके, you have to create a build, ultimately you have to pay that cost। आपका लॉजिस्टिक कितना ऑर्गेनाइज है, किस तरह से आप माल भेज रहे हो करके। हमारा किलर का सक्सेस किया कि हमने, जब हमारा टर्नओवर भी बहुत छोटा था,
हमने डिस्ट्रीब्यूशन पूरे इंडिया में अपॉइंट कर लिए थे। तो हर छोटी छोटी जगह के ऊपर जो है हमारा माल अवेलेबल था। जो टायर 3 टायर 4 सिटीज आज आप बात करते हो, बरोबर है। आज से हमने 1995 में हमारे पास टायर 3 और टायर 4 सिटीज की बात करते थे करके नॉर्मली हमारा प्रोडक्ट जो है वहां पर अपना जा चुका था। लोग आज पहुंच रहे हैं, हम तब से अपना उस सिटी के अंदर है। आज भी आप पटना में जाओ, नंबर 1 आज। आप पटना सिटी के नाम, आप पटना सिटी में आप किसी भी छोटे छोटे बच्चों को बोलोगे किलर का नाम, आप ओडिशा में जाओ, वहां उस ईस्टर्न एरिया में आप चले जाओ करके नॉर्मली, पहले साउथ के अंदर आप किसी को पूछ लो। तो ब्रांड की जो अवेयरनेस जो है वो कैंपेन, एडवर्टाइजमेंट, लुक फैक्टर, उस क्वालिटी, प्राइस, हर चीज को हमने मेंटेन किया करके तब जाके सब इतने सारे आप भी जितने भी प्लस पॉइंट है आपने उस चीज को मेंटेन किया, तब जाके आपको एक सक्सेस मिला ना। और मेन चीज है अनबीटन है, आज भी हम अनबीटन है। कोई भी ट्रेमर आया, कोई भी फाइनेंशियल स्ट्रगल आया, जैसे पेंडेमिक आया अभी, तो भी हमने हमारी इन्वेंट्री को लास्ट ईयर भी हमने क्लियर कर दिया पूरा का पूरा। कोई स्ट्रेस नहीं, लोगों का पेमेंट नहीं आ रहा था, हम कैश के ऊपर बैठे थे, हमने लिक्विडेट कर दिया फटाफट माल। क्योंकि आपका अगर प्रोडक्ट कॉस्ट नीचे है, आप ऑनलाइन में जाके माल ठोक दो एक दफे, आप ऑनलाइन में माल सेल कर दोगे, आपका माल तो बिक जाएगा ना। और प्राइस अगर सस्ते में दे रहे हो, दुनिया 2 चीज के लिए काम करती है। एक, आपका प्रोडक्ट सस्ता है तो लोग ढूंढते हुए आपको आते हैं, ढूंढते हुए लोग आते हैं आपको। और अगर आप प्रॉफिटेबल कंपनी हो, आपकी कंपनी की रीच बढ़ी है, तो लोग आपके साथ अटैच होना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं करके। और जब आपका प्राइस पॉइंट प्लस है तो लोग ढूंढते हुए आते हैं। वैसे अगर आप लोगों के साथ एसोसिएट होकर उनको कमाई, उनके लॉस के साथ आप पार्टनर हो कि लॉस आपका नहीं होगा, तो लोग आपके साथ जुड़ते हैं करके। तो सारी चीज आपका, यू हैव टू कंट्रोल योर कॉस्ट। आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है। आप खाली एक डिग्री लेके, हम बोलते हैं ना कि हम बहुत बड़ी डिग्री लेके, आप एक डिग्री लेते हो, लेकिन गारमेंट के धंधे में आपको 5 डिग्री चाहिए। आपको एचआर भी सीखना पड़ता है, आपको डिजाइन भी सीखना पड़ता है, आपको मर्चेंडाइजिंग भी सीखना पड़ता है, आपको क्वालिटी स्टिचिंग भी सीखना पड़ता है, आपको एम्ब्रॉयडरी, जितने सारे चीज है। आपको लोगों के साथ कैसे बिहेवियर करना है, माल कैसा देना है, आपका कंपटीटर कौन है। जब तक आप पूरा चीज को सीखोगे नहीं, खाली प्रेजेंटेशन करने से आपका 20% काम डिजिटल इंडिया काम करेगी। आज के दिन में जितना भी डिजिटाइजेशन हुआ है वो आपका, देखिए प्रोडक्ट तो आपका कोई भी ऑटोमाइजेशन में बनेगा नहीं। गारमेंट आपका 50% रेशियो तो वो निकल गया। अब रहा मार्केटिंग का पोर्शन आपका। जब प्रोडक्ट आपने बना दिया, फिजिकल के थ्रू आपने माल बना दिया, अब आपको मार्केट में जाके माल सेल करना है। और कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू आपका कैटलॉग सेल नहीं है। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कैटलॉग के लोगों को फील एंड टच चाहिए। भैया लेडीज के अंदर आप जाओगे, जॉर्जेट क्या है, कौन सा फील है, कैसे मटेरियल है, क्या क्वालिटी है, लोगों को फील एंड टच चाहिए इंडिया में आज भी। वो उनका काम करने का। इवन आप इंटरनेशनल मार्केट में भी जाओगे ना, तो उनको प्राइस पॉइंट है, उस प्राइस पॉइंट के ऊपर कौन सी क्वालिटी है, कौन सा फैब्रिक है, किस तरह का पूरा डिटेल आपको देना पड़ता है। जब आप डिटेल लेते हो तब आज जाके आपके मर्चेंडाइजिंग बाइंग होती है करके। आज तो बहुत बड़ा डिटेलिंग आपके साथ अपना हो जाता है। सो दिस इज फील एंड टच बिजनेस, दिस इज नॉट। हाँ, आपका कम्युनिकेशन आपको करना है डिजिटल। आज जो प्लेटफॉर्म पैंडेमिक में जो हमको सीखने को मिला कि टेक्नोलॉजी का एडवांटेज का, कि आज दुनिया छोटी हो गई है, हम कहीं पर भी बैठ के दुनिया की रीच को, जैसे आज हम मीटिंग कर रहे हैं करके, वैसे मीटिंग हम कर सकते हैं। 20 to 25% योर वर्क विल बी सिंप्लिसिटी करके। लोगों को रीच करना है, लोग आपके कहीं पे भी रहेंगे, उनको कॉल करना है। पहले आपको मोबाइल पे कॉल करना पड़ता है आपको। अब जैसे लॉकडाउन के अंदर सब बहुत जनों ने घर से ही काम किया करके, बरोबर है। तो दिस इज द न्यू इनोवेशन करके। आपका प्लेटफॉर्म है, आपकी कंपनी के अंदर कंप्लायंस भी मेंटेन हो गया, पेपर वर्क का भी काम हो गया। वीक में, हफ्ते में 1 दिन ऑफिस में आया करके, तो भी आपका पेपर वर्क जो प्रिंटिंग निकालना था या कॉपी निकालनी थी, आपने कॉपी निकाल ली, तब तक आपके पास कंप्यूटर में सब कुछ है। तो दुनिया बदलती रहती है, दुनिया में नया इनोवेशन आता रहता है, बट यू हैव टू बी विद दैट। आपके पास फाइनेंशियल अगर है तो दुनिया में हमेशा आप अपडेट रहोगे, आप आगे बढ़ते रहोगे। दिस इज द थिंग। आई थिंक मैंने पूरा समराइज कर दिया आपको पूरा। यस सर, आई थिंक मेरा बस एक आपसे एक लास्ट क्वेश्चन कि सी यू हैव डन सो मेनी थिंग्स एंड आई सी यू बीइंग एज अ not as a chairperson but you as a managing director, you are actively involved in all the major departments of your organization. What has been your giving back to the society? देखिए मैं आपको 2 चीज बताऊं। मैं अभी एक नया आपको फॉर्मूला दे देता हूं फाइनेंस का। लोग कैपेक्स की बात करते हैं लेकिन लोग ओपेक्स की बात नहीं करते। मैं आपको गारमेंट इंडस्ट्रीज की बात बताऊं, बरोबर ना। लोग खर्चे जोड़ते जाएंगे करके, बरोबर ना। आपके फिक्स खर्चे कितने, पहले बात आप उसको मैपिंग करो। महीने का आपका 10 लाख का खर्चा है, 15 लाख का खर्चा है, क्योंकि प्रोडक्ट का इनोवेशन कैसा, प्राइस इनोवेशन कैसा है, वॉल्यूम के ऊपर है।
आप कितने गारमेंट बनाओगे। आज के दिन में प्राइसिंग थ्योरी नहीं चलती, जो पहले हम सब क्या करते थे, कपड़ा कितना गया, सिलाई कितनी गई, एक्सेसरीज कितनी गई, मार्केटिंग का कितना खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट का कितना खर्चा, हम प्राइस पॉइंट सोचते थे। आज का पूरा प्रॉफिट मार्जिन कैसा है करके, कि आपने कितना वॉल्यूम किया महीने का, आपका फिक्स खर्चा कितना है, अगर उससे आप 20% एक्स्ट्रा मार्जिन, अगर आप माल बेचते हो, समझो जो महीने का टारगेट आपका समझो 1 करोड़ का माल बेचने का है, और आपका फिक्स खर्चा समझो 20% का है, तो 20 लाख का आपका खर्चा है। वही माल आप 1.5 करोड़ का सेल करते हो उस महीने के अंदर, तो आपका 50 लाख के ऊपर जो है खाली फिक्स खर्चा तो अपना रिडक्शन में आ गया ना। तो ये ओवर लिवरेज काम करना पड़ता है इस इंडस्ट्री में। तो इसका मैथमेटिक्स कहीं है नहीं है करके, बट यू हैव टू फाइंड आउट योर मैथमेटिक्स इन दैट करके। वॉल्यूम के ऊपर है, क्योंकि आपका सीओजीएस कॉस्ट क्या है पहली बात तो, और आपका ग्रॉस मार्जिन क्या है, क्योंकि जब आप ग्रॉस मार्जिन की बात करते हो तो आपका ओपेक्स कवर हो गया उस चीज के अंदर, और जब आप ओपेक्स से बात करते हो तो अकाउंट के सारे खर्चे उस चीज के अंदर आ गए। अगर आप दो चीज समझ लिए, मुझे कैपेक्स कितना करना है, उसके बाद मेरा बैंक लोन कितना है, मेरा इंटरेस्ट कितना, वो ओपेक्स के अंदर सारा कवर हो जाता है आपको। अगर आपने दो चीज सीख ली ना, तो धंधे का 50% काम आपने सीख लिया। ऑडिटर कभी आपके ऊपर चढ़ के नहीं बचेगा। नहीं तो हम क्या करते हैं, पैसा बचाने के लिए हम कॉम्प्लाइंस को खड्डे में डाल देते हैं, जबकि कॉम्प्लाइंस इतना इजी है। मैंने देखिए, मैंने तो जीरो टैक्स इवेजन प्रैक्टिस में काम किया है पूरा का पूरा, लास्ट 89 से लेके। जो रॉयल्स रॉयस है, लोग बोलते हैं कॉम्प्लाइंस में, अरे इतना टैक्स भरोगे, इनकम टैक्स की इंक्वायरी है, कभी कोई इंक्वायरी नहीं आती है, आप उसके बाप अपना बन जाते हो। भैया जो देखना तो देख लेगा आके अपने ऑफिस के अंदर, बरोबर ना। वो उल्टा स्माइल देके जाएगा, भी आपका तो बहुत क्लियर है करके, बरोबर ना। हमारी लाइफ आपने अपना मिसरेबल कर दी करके, यहाँ लोगों को क्या पैरेलल इंडस्ट्री चलती है करके, ये सब चीजों का। आज जैसे देखिए जीएसटी आ गया, आज लोग ऑफिशियल बिजनेस के ऊपर आ गए, आज 98% लोग ऑफिशियल बिजनेस के ऊपर आ गए। तो दिस इज द चेंज। यही चेंज हमने 1989 में से हमने शुरुआत कर ली थी। सो वी आर, हमको जीएसटी रूल है, हम बोला है क्या वेट, और उसको जे के नया नाम आया है जीएसटी कर, यू हैव टू पे टैक्स, फिनिश। हमने हमारी इंटरनल टीम ने जीएसटी का पूरा पेपर वर्क कर लिया, जबकि चार्टर्ड अकाउंटर आके हमको बोलते थे, सर ये तो नया रूल है, बुक पढ़ना पड़ेगा। क्या बुक पढ़ना, टैक्स भरना है नीचे आपको, अकाउंट के नीचे देख लो, हो गया बात खत्म। नहीं तो आप एक काम करो, प्रोडक्ट का इंक्लूसिव आप टैक्स कर दो आप, या तो 1% आपका प्रॉफिट डाउन होगा, 8% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। Yeah, absolutely, that is true जी। You have to make simplicity the rule. जितना आप सिंपल करोगे, जितना आप कॉम्प्लिकेट करोगे, you have to pay high। तो हमारे पास जो लोग टीम में जुड़े, जब जीएसटी का रूल आया था, तो बोले सर इसका इतना खर्चा आएगा, ये फॉर्मेट बना, हम बोला चुप, कुछ भी नहीं खर्चा है क्या है, तो टैक्स ना नीचे जाके आपके ग्रॉस अमाउंट के सामने प्रोडक्ट के बाद नीचे टैक्स जोड़ने का। अरे कौन सा बड़ी चीज है, पेपर वर्क क्या, चेक कर लो उसको, गवर्नमेंट से इंक्वायरी कर लो करके। जोड़ना क्या है, 10%, 12%, 18%, रेट तो वही आपका भाई, जो पहले 10% था तो 12% हो गया होगा एमआरपी के ऊपर आपका, उसका रेशियोज क्या करके। जब आप अकाउंटिंग में आप रहते हो ना, लोग पहले 20% ऑर्गेनाइज काम करते थे, 80% कैश का काम करते, तो उनके दिमाग में तो कभी चलने वाले नहीं है। जब आप ऑर्गेनाइज हो, प्लेयर हो, आपको फंडिंग मिल जाता है, आपके पास डेटा है, आपके पास हिस्ट्री है, सो कैपेक्स एंड ओपेक्स, जब आप फाइनेंस जान जाते हो ना, तो आपको पता मुझे कितना कैपेक्स करना है। नहीं तो आपने 15 एकड़ लैंड ले लिया, अरे जरूरत ही 5 एकड़ की थी, आपने 15 एकड़ लैंड ले लिया, तो आपका प्रोडक्ट प्रॉफिट कैसे आएगा। आपने अननेसेसरी बिल्डिंग, आपको इनिशियल स्टेज में आपको 1.5 लाख फुट की बिल्डिंग चाहिए थी, आपने 5 लाख फुट बिल्डिंग बना ली, आप इंटरेस्ट भरते जा रहे हो चीज के ऊपर। अरे आपका टर्नओवर कितना होगा, आप सेकंड फेज में दूसरा बनाओ ना। Absolutely, sir. Sir, आप अपना how, now that you have created everything and you're very clear in terms of how to control the business, and I'm sure कि आपकी family and आपके all the members of the teams are equally trained enough to work on this. अब आप सोसाइटी के लिए कैसे, what is that you are looking at society, अब कैसे give back कर रहे हो सोसाइटी को। देखिए सोसाइटी के अंदर जैसे जितो, आई एम द फाउंडर मेंबर ऑफ जितो। जितो में जब 5 लाख रुपया भी नहीं था, नए पद्म सागर सूरी जी महाराज साहब ने चालू किया था, हम लोग 3-4 जन थे, आई एम वन ऑफ देम। तो सोसाइटी के लिए देखिए जितो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया। एब्सोल्युटली। आज जेटीएफ के आई एम द सेक्रेटरी, जितने भी पहले स्टार्टिंग के सेंटर बने थे करके, तो सारे सेंटर्स मेरे द्वारा आपने डेवलप होते। प्रदीप जी जो चेयरमैन सेलो के जो थे, वो चेयरमैन थे, एंड आई एम द सेक्रेटरी। तो टू गिव बैक, आप कमाओगे, आप सोसाइटी से लेते हो तो आपको देना तो चाहिए करके वापिस। आप हॉस्पिटल में डोनेशन करो, एजुकेशन में डोनेशन करो, किसी कोई गरीब है
आप जैसे आप पेंडेमिक में लोगों के पास सैलरी है, वी नेवर ले ऑफ सिंगल पीपल करके इस पेंडेमिक में। वंडरफुल। वी नेवर ले ऑफ सिंगल पीपल। हमारे पास लोग आए, हमारे पास मार्केटिंग के लोग हैं सर, एचआरडी के लोग हैं सर, लोगों को कम करते हैं। बोला नो, इस वक्त क्या है, लोगों का बेसिक खर्चा है, बरोबर ना, आप थोड़ा रिडक्शन कर लो सैलरी के अंदर, पे दें क्योंकि अभी क्या आपके लाइफस्टाइल में दो खर्चे होते हैं, एक बेसिक फूड और एक लाइफस्टाइल। जब पूरे मॉल ही बंद है तो लाइफस्टाइल का खर्चा है नहीं आपका, बेसिक फूड चाहिए आपको, और बेसिक फूड का खर्चा आप दे दो, आपका 100% नहीं दो, 60-65% दो करके, उनका ट्रैवलिंग खर्चा नहीं, आने जाने का खर्चा नहीं है, मींस यू आर मेकिंग 80-85% पेमेंट टू देम करके नॉर्मली। सो वी नेवर सिंगल, क्योंकि हमने ले ऑफ किया ही नहीं, एंड वी स्टार्टेड, जैसे अभी पेंडेमिक खत्म भी नहीं हुआ था, वी स्टार्टेड 100% सैलरी करके फ्रॉम जैन ऑनवर्ड्स करके। Very good, sir. Very good. So thank you so much, Keval ji, for this wonderful session. And I'm sure there are some questions also जो भी हमारे आज के attendees हैं, participants हैं. If you allow me another few minutes, मैं quickly कुछ questions जिन्होंने लोगों ने यहाँ पे डाले हैं. Mr. Nitin Sharma, he has asked a question. Sir, what do you suggest for a new brand to launch proper men-women category to come up with a niche product? क्या देखिए, पहली बात, उनको लोकल प्लेयर बनना है या अपना नेशनल प्लेयर बनना है, you have to decide your side first you have to, you may be a local, अपना आपको एक स्टेट में चालू करना है या पैन इंडिया चालू करना है। इफ यू नीड करिए कि मेंस और विमेंस का प्रोडक्ट अगर आपको चालू करना है पैन इंडिया में, यू नीड योर बैलेंस शीट नॉट लेस देन 500 करोड़। ओके, आप 100 करोड़ में अगर इंडस्ट्रीज में पैसा डालोगे आप डूब जाओगे, क्योंकि आज आप देखिए 30 स्टेट्स है, आप 100 करोड़ रुपया लगाते हो करके, एक स्टेट के अंदर 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आप क्या धंधा करोगे? आपके पास ऑपेक्स का खर्चा इतना बड़ा हो जाएगा, टीम तो आपको वही 300-400 करोड़ के लिए डेवलप करनी पड़ेगी, आपको एडवर्टाइजमेंट तो उतना ही करना पड़ेगा करके। जब आपके ऑपेक्स के खर्चे अगर उतने हैं नॉर्मली, आप प्रॉफिट ओरिएंटेड होंगे नहीं, आप लॉस बुकिंग करोगे। क्योंकि आज के दिन में क्या है, नॉर्मली आपको शॉप भी ओपन करना पड़ता है, प्रीमियम शोरूम भी ओपन करना पड़ता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बहुत ज्यादा है। अगर मैं फैशन इंडस्ट्रीज में बात करूं नॉर्मली, तो क्या होता है, या तो आप रिटेलर बन जाओ, आप मैन्युफैक्चरिंग कम रिटेलर बन जाओ, तो आपका खर्चा बहुत बढ़ जाता है उस चीज के अंदर। आपको मॉल में दुकान खोलना है, फिर नई टीम बिल्ड करनी है, लोगों के साथ एसोसिएट होना है करके, या आप डायरेक्ट माल आप जो है होलसेलर के थ्रू माल बेचो करके, या आपको सप्लायर के रूप में, हाँ खाली आपको प्रोडक्ट डायरेक्ट अगर बड़े चेन स्टोर्स को देना है माल करके बना के, तो आप एज ए मैन्युफैक्चरर हो तो आपका काम 100 करोड़ में हो जाएगा, बिग साइज काम हो जाएगा। लेकिन 25 करोड़ 30 करोड़ के अंदर जो छोटे छोटे आपको 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ का टॉप लाइन का अगर है काम, आपको उतना ही काम करना है, यू बी हैप्पी, उसमें सबसे ज्यादा मार्जिन मिलेगा। लेकिन फिर आप नेशनल प्लेयर नहीं बन सकते। नेशनल प्लेयर के लिए कम से कम बैलेंस शीट साइड शुड बी नॉट लेस देन 300 to 500 crores. Okay, thank you. शिवानी सिंह का क्वेश्चन है, शिवानी सिंह इज फ्रॉम फैशन एम्पायर। अच्छा, एक मिनट, वन मोर थिंग, एंड यू शुड बी जीरो डेट। हाँ, जीरो डेट, ये जीरो डेट, जीरो एब्सोल्युटली। और या आप लिवरेज भी करते हो ना, तो 0.2 से ज्यादा आपका लिवरेज नहीं होना चाहिए। अच्छा, ओके। यू Shivani Singh is from Fashion Empire. Sir, how do you create different prices for different products for different brands? आप अपने different products की pricing कैसे करते हैं और अपने different brands के लिए कैसे करते हैं? So this is what she is asking. मैंने सबसे पहला एग्जांपल जैसे आपको बताया करके पानी के बोतल का, होटल इंडस्ट्रीज का, you have to put a grade. मेरे को हाइपर छोटी सी दुकान खोलनी है, कन्वीनियंट शॉपिंग खोलना है मुझे, तो प्रोडक्ट तो वही रहेगा आपका, तो आपका प्राइसिंग उसी हिसाब से आएगा, आपका सर्विस खर्चा कम होगा। फिर आपको बड़ी डिपार्टमेंट अगर सुपरमार्केट खोलना है तो आपका खर्चा उस तरह से आएगा, हियर टू बी प्राइस टैग विल बी चेंज करके। फिर आपको अगर हाइपर मार्केट खोलना है तो उस हिसाब से आपका प्राइस पॉइंट आएगा करके। आपको फैशन इंडस्ट्रीज में आगे एकदम लाइफस्टाइल ब्रांड में एकदम हाई प्राइस इमेज के हिसाब से आपको आना है तो प्राइस पॉइंट आपका अलग रहेगा करके। शोरूम का लुक, फैक्टर, इंटीरियर, सब प्लेस, सब कुछ अलग रहेगा करके। दैट वाई यू हैव टू क्रिएट, यू हैव टू ग्रेड कंटिन्यूस। वो आपको 20 से लेके 100 तक का ग्रेड देना पड़ता है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, आपको अलग अलग स्टेज क्रिएट करना पड़ता है। प्रोडक्ट तो आपका कॉस्टिंग के अंदर खाली 50-100 रुपए का फर्क पड़ेगा। कपड़े का आप सस्ता कपड़ा ले लोगे, एक महंगा कपड़ा ले लोगे, उसके अंदर प्रीमियम प्रोडक्ट बनाने के लिए आपकी स्टिचिंग कॉस्ट में हार्डली 10-20% का फर्क आएगा।
आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड के अंदर हार्डली 10-20% आपका रिजेक्शन का, आप अगर समझो इकोनॉमिकल प्रोडक्ट बना तो आपका रिजेक्शन लेवल 2% का, उधर आप 10% कर लोगे, तो उधर ज्यादा प्राइस चेंज नहीं होता है। प्राइस चेंज होता है आपका सर्विस सेंटर, आप लोग कैसी टीम बिल्ड कर रहे हो, आपका कॉन्सेप्ट क्या है, आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है, किस तरह से आपको बढ़ना है करके। मैं आपको बताऊं, डी मार्ट में जो माल बिकता है ना आपको, वो 2 सीजन डाउन माल लेते हैं। वहां पर कस्टमर कौन है डी मार्ट के अंदर? गारमेंट लेने वाले कौन? उनको 300-325 रुपए में प्रोडक्ट चाहिए। अगर वो क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाने के लिए जाओगे आपको 500-550 के नीचे घर में नहीं गिरेगा। तो क्या होता है कि वो जो मटेरियल खरीदते हैं मर्चेंडाइजिंग, वो 2 सीजन डाउन होती है, क्योंकि उनके कस्टमर कौन है? जिनको वो बेसिक लाइफस्टाइल से फाइट करने वाले लोग हैं। दे आर नॉट फैशन ओरिएंटेड पीपल जो वहां पर बाइंग के लिए जाते हैं। तो उनको कपड़ा अच्छा मिल जाता है, 300-325 रुपए में 399 में सेल कर देते हैं वो। तो 2 सीजन डाउन हो गया, कपड़ा तो अच्छा मिल गया उनको। ये है टू क्रिएट। अभी आपको फैशन में फ्रेश कपड़ा लेना है या असॉर्टमेंट का कपड़ा लेना है, क्योंकि प्राइसिंग कैसे नीचे आएगा? जो कपड़ा फ्रेश में बनेगा 100 रुपए मीटर का, वही सेकंड में जब आप शॉर्ट लेंथ लोगे, 9 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर का कट लोगे, तो आपको 30%, 40% चीपर मिलेगा करके। आपका ये प्रोडक्ट का अपना यूनिट साइज कितना है करके, आप अल्लाह काटे आप बना रहे हो, आप ऑर्डर बुक करके माल बना रहे हो, किस तरह से बना रहे हो, तो आपका फैक्टरिंग, तो आपके डिफेक्ट पॉइंट बढ़ जाएंगे करके। आपको जितना छोटा साइज है, दिस इज कॉस्ट इज अकॉर्डिंग टू योर साइज एंड अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट। सर, आपका एक बहुत अच्छी चीज है जो मुझे रिसेंटली पता चली। हमारे जो लेटेस्ट पार्टनर्स हैं, मिस्टर राम सरीन फ्रॉम टुकाटेक, he talks highly about you, and आपकी कंपनी was amongst the first to adopt digital technologies. Yes. 3D टेक्नोलॉजी आपकी कंपनी ने सबसे पहले अडॉप्ट किया था Yes, इंडिया yes, में। yes, So yes. what was your thought about adopting to this particular area? देखिए, जितना आप अभी क्या होता है, पैटर्न बनाना होता है, आपका क्योंकि जीन्स के अंदर फिटिंग के लिए मास्टर तो चाहिए आपको, लेकिन थोड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म होने से आपको आइडिया मिल जाती है। उसका एक एडवांटेज है टेक्नोलॉजी का। आज जैसे कंप्यूटर एज हो गया, आप स्केचिंग कर सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो, मिनिमम चीज आप स्क्रीन के ऊपर बता सकते हो। तो डिजिटल इंडिया का फायदा तो है ही है करके उसका। आपको कैड क्या, आपको समझो पूरा का पूरा थप्पा कटिंग करना है, आपने प्रिंट आउट निकाल के स्केचिंग करके फिटिंग करके आपका एक से, क्योंकि एक टुकाटेक का आपको एडवांटेज क्या है कि आपको पूरा थप्पी कटिंग करना है। आप ऊपर क्या करो, आपको लेइंग करने की जरूरत नहीं है, डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, पूरा प्रिंट आउट निकाल लो कंप्यूटर के साथ में, और फिर उसको कट करते जाओ सीधा सीधा। यू विल सेव योर कॉस्ट ना। आप टेक्नोलॉजी के लिए पे करते हो तो आपका जो कटिंग का जो साइज है थप्पा का पूरा, जैसे जैसे यूनिफॉर्म कटिंग होते हैं करके, थप्पे के थप्पे हजारों पीस के अंदर, दिस इज वेरी इजी फॉर यू। Absolutely, and that's what the requirement of the time is कि आपको अपनी कॉस्ट कटिंग कैसे करनी है, अपनी वेस्टेजेस कैसे हटाना है, कैसे रॉ मटेरियल कंजम्पशन को कम करना है। एंड एब्सोल्युटली एज यू राइटली सेड, वंस यू आर प्रॉफिटेबल और आपका जीरो डेट है, तो आपके ऊपर उतना ही प्रेशर कम होता है परफॉर्म करने का। एंड आई थिंक दैट वाज वन ऑफ माय बेस्ट टेकअवेज। Gagan, over to you, and you want to have any questions to be taken up, anything I have missed out? I have been listening to this. मैं सुन रहा हूँ पिछले 1 घंटे से, एंड बहुत ही अच्छी इंसाइट्स मिली मुझे। आज प्रैक्टिकल नॉलेज जो मैंने आज देखी है और सुनी है, दिस इज ट्रूली वंडरफुल। एंड मैं इस टाइम सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मैं कम्प्लीटली ऑस्टक हूँ पूरा सुन के, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। जहाँ तक क्वेश्चन का सवाल है, सोनिल कुछ एक क्वेश्चंस, एक तो आप देखें अगर चैट बॉक्स में काफ़ी कंग्रेचुलेशंस भी आई हुई हैं फॉर देयर सक्सेसफुल जर्नी, वो भी आया हुआ है। एंड आई थिंक मोर और लेस हमने क्वेश्चन जो है वो सारे ले ही लिए हैं चैट बॉक्स के अंदर, जो भी हमारे आए थे चैट में भी, वो हमने सब ले ही लिए हैं क्वेश्चन। सो क्वेश्चंस और नहीं है, लेकिन मैंने ये सेशन पर्सनली बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। कोई जो बिल्कुल मुश्किलों से निकल के इस लेवल तक आ जाए हैं, साथ ही साथ में हर एक पहलू को जो है अपने बिजनेस के देख रहे हैं, और ये सब प्रैक्टिकल टिप्स हैं, और जो लोग कह भी रहे हैं चैट पे कि कितना इम्पोर्टेंट ये चीजें हैं जो लोगों को समझनी है, और ये छोटी छोटी चीजें अगर वो ध्यान रखें, कभी भी आप बिजनेस में नीचे नहीं जा सकते। बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद केवल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बहुत अच्छी इंसाइट आपने हमें दी आज, और हमारे सारे के सारे सोटेक्स के मेंबर्स को दी, जिन्होंने जो जगह जगह से जो है ज्वाइन किए हैं। और ये जो चीज़ है, ये सिर्फ ये आज इन लोगों के मेंबर्स के लिए ही नहीं है, ये जो हमारी आपकी रिकॉर्डिंग है
हम हमारे सारे 12,000 मेंबर्स को भेजेंगे एंड मुझे पता है कि ये जो रिकॉर्डिंग है बहुत लोगों के लिए और भी इंस्पिरेशन बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद केवल जी आपका। थैंक्स अ लॉट। Okay, thank you. Keval ji, any final advice that you want to give to the community at large? देखिए, बहुत धंधे के अंदर आप हीरो बनोगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे। Absolutely. तो यू शुड बिकम हीरो। जब मैंने आपको फिजिकल इतनी सारी नॉलेज सीखने की जब मैंने बात की, आप जैसे शाहरुख खान पहले क्या था करके, बरोबर ना? पीछे कितना स्ट्रगल किया उन्होंने, लेकिन आज लोग उसको फॉलो करते हैं। तो यू शुड बी ए शाहरुख खान, तब लोग जाके आपको इंडस्ट्री में आप सक्सेस कर सकते हो। आपको 0 से लेकर 100 तक सब कुछ सीखना है आपको, और जब आप उतना परिश्रम करोगे, सब सीखोगे, तो दुनिया आपको फॉलो करेगी। दुनिया आपको दुनिया को फॉलो नहीं करना है, आपको आपकी हिस्ट्री बनानी है। आप हिस्ट्री पढ़ के कभी हिस्ट्री क्रिएट नहीं कर सकते। यू शुड क्रिएट योर हिस्ट्री, और वो स्ट्रगलिंग करने के अंदर आप जितना जितना टाइम दे, आपकी हिस्ट्री बनते जाएगी एंड यू बिकम द इनोवेटिव पर्सन इन द इंडस्ट्रीज करके। Thank you so much, Keval ji. Thank you so much. And Thank you. from everyone, including from the Jito community, the JBN business community, thank you for sparing your valuable time. And I would thank to all the members who have participated in today's session. Some of the members have asked for direct connections of Keval ji. Please reach out to team Sotex, and we will see if we can bridge you out with the Keval Kiran clothing team to take it forward. Gagan, any final comments or anything that we need to do for the concluding the session? Okay. Yes, thank you so much, Keval ji. Thank you so much, Keval ji. And Thank you. to all the members for joining us for today's session. Yes, thank you. Keval, Gagan, you want to share about the next session once again, please? I would definitely like to do that, Sonal. There are so many of us who are still here. And I would like to quickly talk about our next session, which is again a very, very interesting session for us. The next session is actually this Saturday at 4 p.m. I am very, very excited to share the details of that session. I'm going to be sharing one screen quickly, if you allow me a moment. There you go. This session is actually, I am really delighted that Tirupur Exporters Association is with us in organizing a special session for automating your business with Google Forms and Sheets. And this session is being done along with or by Mr. Keval Jain, who is a business automation coach. We are extremely, extremely thankful to Tirupur Exporters Association for planning and in collaboration with Sotex. Thank you so much. And yes, we are all excited. If you want, I'm sure if you have been a member or you have been coming to Sotex events, you would have already got this particular details of this particular event. If not, reach out to us. We'll be happy to share the link. And join our community on LinkedIn as well as Facebook, where you will be able to get to know more about our events and see all these recordings. Today's recording so insightful. You will be able to see it if you join our community, and you will also be able to see it on YouTube. Along with that, I want to talk about the famous design launch, Sotex Design Lab launch, which happened 2 weeks back. We have now started working towards it. Now we are starting the training sessions and telling all the business owners how can they really making a difference. And next Thursday, 29 July, 5 p.m. exactly, we will be talking about what is this technology, how to use this technology to reduce our design development time from 3 weeks to 3 hours. So please be there for our next set of events in July. And of course, finishing our time with the last session, which we are now presenting the first week of August, which is our networking meet, where the buyers, the manufacturers and suppliers come from all over the world. So these are 3 of our upcoming events. And we always like to thank our sponsors, DTEX as well as VN International, for some amazing support you give us, along with all the associations, including GEAR, Indian Importers Chambers of Commerce and Industry, Tirupur Exporters Association, and Noida Apparel Export Cluster. Thank you all so much for the continued support. We are extremely grateful to you that you come here, ask so many questions and take value, and we are able to give value. And with this,
I would like to conclude this session. But before that, Sonil, any last comments on your interaction with Kevalji? Just to say, it was an absolute delight learning from a leader, a true leader who has been there, done the entire journey from 36 years, and has built up a fantastic company and a zero debt company. It's amazing to know that, and it's a profitable journey. Apart from this, what we could learn out of the fact that how a person can be very, very focused in terms of his vision, how he can create the product line. And I know being in the industry, the industry is always full of challenges. और इतने challenges के साथ भी किस तरीके से उन्होंने maneuverability रखी है, कैसे अपने लोगों को उन्होंने संभाल के रखा है, and how the teams have been outstandingly contributing. And not only that, he's created a very fashion iconic brand. So somebody was just asking on the group of, उनके photographer का नाम क्या है? If you see the imagery of Killer Jeans, it's simply outstanding. It is nothing. अब किसी भी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते. It's a very, very international look and feel of the entire photography they do on their product lines. So very focused on their marketing, advertising, and there's a lot to understand from the fact that how the company is adopting new digital technologies. So from Mr. Ram Sareen, I personally have a big gratitude for Mr. Keval Jain. He was the first company in India to adopt the digital technology. And today he validated the fact that this has been a game changer, and he has been able to reduce about 20 to 25% of the cost, the sample development cost. And that's the need of the hour. And that's what was my key takeaway from today's session. So a lot to learn. And I really thank all the members who have taken up their time and been in the session throughout with us. Thank you so much. Thank you so much. Looking forward to see you at many of our next sessions. Thank you all. Thank you, everyone.